येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामी गौर गदाधर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता क्लासेस। अभी हम चैप्टर 2 में हैं और आज हम श्लोका नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य कौन होता है वो हम देखेंगे। सो नाउ 2.54 से पूरा 72 तक वी विल सी एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसा होता है। सो 54 में अर्जुन कृष्ण से 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य का सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर हिज सिम्टम्स। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज ही स्पीक। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज ही सिट एंड फोर्थ इज हाउ डज ही वॉक। 55 में कृष्ण आंसर्स हिज फर्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर हिज सिम्टम्स, how does he reveal his position. Then 56 and 57, Krishna answers his second question, how does he speak. 58 to 63, he answers his third question. "58 to 63, how does he sit?" और 61 to 67 उनका fourth question, how does he walk. और 72 में कृष्णा कंक्लूड्स कि इस तरह से अगर कोई रहता है तो फिर वो मृत्यु के समय भगवान के किंगडम में एंटर करता है। सो अभी वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ईच आंसर विच कृष्णा गिव्स टू ईच क्वेश्चन ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, कीप इन माइंड। पहला है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ स्थित प्रज्ञ पर्सन। सेकंड इज हाउ डज ही स्पीक। थर्ड इज हाउ डज ही सिट. Fourth is how does he walk. You all can write this. These are the 4 questions. 55 first question, 56 57 second question, 58 to 63 third question, and 61 to 67 is the fourth question. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। कृष्णा सेज दैट द सेल्फ रियलाइज सोल हैज रिनाउंस्ड ऑल टिंजेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन बाय फाइंडिंग प्लेजर इन हिज सेल्फ। तो ये सिम्टम होता है स्थित प्रज्ञ पर्सन का। फिर वो बोलते कैसे हैं। सच अ पर्सन is neither mentally disturbed, elated, attached, fearful, or angry, and verbally he neither praises nor criticizes the good and evil he attains. तो वो किसी का he doesn't praise and he doesn't even criticize the good and evil he attains. Then how does he sit? He remains fixed in transcendental consciousness by virtue of his higher taste for the service of Krishna. Therefore, one should restrict one's senses from the sense objects by focusing them on Krishna. And then how does he walk? He is fixed by his intelligence and achieves undisturbed peace by ignoring the desires of his mind. So now, one by one, let's see
Text 54. Arjuna Uvacha. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत प्रजेत किम. Arjuna Uvach. Arjun said, Sthitapragyasya, of one who is situated in fixed Krishna consciousness, ka, what, bhasha, language, samadhi sthasya, of one situated in trance, Keshava, O Krishna, Sthitadhi, one fixed in Krishna consciousness, kim, what, Prabhasheta speaks, Kim how, Asita does remain still, Vrajeta walks, Kim how. So Arjun said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? Purport में प्रभुपाद लिखते हैं, as there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, as a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks. For speech is the most important quality of a man. Very important line. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. तो वेल ड्रेस्ड फूल मतलब अगर कोई कोई पर्सन अगर शो ऑफ कर रहा है कि वो बहुत लर्नेड है या फिर वो बहुत अ, लेकिन है वो बेवकूफ, तो जब तक वो कुछ बोलता नहीं है तब तक हमको पता नहीं चलता है। तो कोई एक शांत पर्सन को आप बहुत हाईली बोलते हैं ना, बहुत उच्च कोटि का भक्त या फिर उसको बहुत उच्च सेल्फ कंट्रोल पर्सन हम उसको नहीं कह सकते। जैसा वो बोलना शुरू करेगा तभी हमको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में कैसा है। तो द पर्सन हु इज क्वाइट इज नॉट अ पर्सन हु इज वेरी मच elated, but you will understand by the moment he starts speaking. और कृष्णा कॉन्शियस पर्सन वो दिन भर बात करेगा लेकिन सिर्फ कृष्णा के बारे में बात करेगा। दैट डजंट मीन दैट ही इज टॉकेटिव या फिर उसका वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ही इज वेरी मच सेल्फ कंट्रोल्ड बिकॉज ही इज ओनली स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। उसको सारा दिन दे दो कृष्ण के बारे में बोलने के लिए, वो बोलेगा। दैट इज एक्चुअली अ क्वाइट पर्सन। वो साइलेंस है। सिर्फ कृष्ण के विषय में बात करना उसको एक्चुअल साइलेंस कहते हैं, ना कि अपना मुंह बंद करके रखना। दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ स्थित प्रज्ञ पर्सन। स्थित प्रज्ञ यहाँ पर ही कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को ही बोला जा रहा है। The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. So this is the first symptom of a Krishna conscious person कि वो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बात करना चाहेगा और वो लोगों से भी कृष्ण के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करेगा। उसको अच्छा नहीं लगेगा ऐसे सिचुएशन ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर ही कृष्ण के विषय में बात नहीं होती है, जहाँ पर इधर उधर की बात होती है। हाँ, वहां पर ही वो चुपचाप से बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, बट द मोमेंट एनीवन स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, एक भगवत गीता का कोई वर्स या फिर दे स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट समथिंग अबाउट कृष्णा, आई हर्ड इन दिस लेक्चर, कुछ भी कृष्ण से रिलेटेड, वहां पर ही उसको बहुत अच्छा लगेगा। दैट पर्सन, that is the first symptom. You only want to speak about Krishna, you don't want to speak anything else other than Krishna. ये फर्स्ट इमीडिएट सिम्टम यहाँ पर, नॉट फर्स्ट, प्रभुपाद यहाँ पर ही मेंशन यूज करते हैं वर्ड इमीडिएट। सो दिस इज द इमीडिएट सिम्टम ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कोई कृष्णा कॉन्शियस है कि नहीं? वो सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करता है, दैट पर्सन इज कृष्णा कॉन्शियस। देन अब भगवान कृष्ण एक एक करके अर्जुन के सारे सवालों का जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।
Shri Bhagavan Uvacha. The Supreme Personality of Godhead said, Prajahati gives up yada when Kaman desires for sense gratification. Sarvan of all varieties, Partha, O son of Pritha, Manah Gatan of mental concoction, Atmani in the pure state of the soul, Eva certainly, Atmana by the purified mind, Tushtaha satisfied, Sthita Pragya transcendentally situated, Tada at that time, Uchyate is said. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Uh, so anyone can read this purport? Hare Krishna Mataji, Panjang Pranam. Hare Krishna. The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualifications, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kind of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially, such sense desires cannot be stopped, but if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for this devotional service will instantly help one unto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialisms. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. Hmm. तो यहाँ पर so Prabhupada writes in this purport कि जो जनरल डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन का क्या होता है. So there are two things. First is he gives up all material desires of sense gratification born of mental concoction. Hmm? And the second is thus purified in mind one finds satisfaction in the self alone. यहाँ पर ही obviously self मतलब soul है. तो वो पहला है कि material desires उसका खत्म हो जाते हैं और वो सेल्फ में ही सेटिस्फाइड रहता है. अब वो मटेरियल डिजायर्स उसका कैसे खत्म होता है? कोई आर्टिफिशियल तरीके से खत्म नहीं होता है, बट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में वो अपने सेंसेस को एंगेज कर देता है, क्योंकि हमारा डिजायर्स कभी खत्म नहीं हो सकते हैं. हम्म? क्योंकि द सोल का जो सोल इज लिविंग, तो उसका वो हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा. ऐसा नहीं है कि वो डेड है या फिर मृत है. लिविंग मीन्स एक्टिव एक्टिविटी. सो डिजायर्स कभी भी और डिजायर्स और एक्टिविटीज का इम्पेटस डिजायर्स होता है. डिजायर्स कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते. जो शून्यवादी लोग होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं. हम डिजायर्स को जीरो नहीं करते, बट कृष्णा कॉन्शियस पीपल, दे डिवोटीज, दे transform their desire, they transfer their desire by engaging themselves in Krishna conscious activities. ये तरीका है उनका material desires खत्म होने का, खत्म करने का. Then
Without Krishna consciousness, one is sure to take shelter of mental concoctions and has no good qualities. This is a reference from 5:18:12 of Bhagavatam. How one finds satisfaction in the self alone? So the first part was gives up material desires. कैसे give up करता है? By engaging in Krishna conscious activities, not any artificial means. दूसरा part है कैसे उसको satisfaction मिलता है self में? By realizing eternal servitorship with the Supreme Lord. He has no sense desires from petty materialism. तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ. तो उस चीज को सोचकर और रियलाइज करके वो स्वयं में ही सेल्फ में ही सेटिस्फाइड रहता है. हम्म, तो यहाँ पे जस्ट लाइक अ पर्सन आफ्टर हैविंग अ मील बिकम सेटिस्फाइड, तो इन द सेम वे अ पर्सन who realizes that he is an eternal servitor of Krishna, he becomes satisfied. His hunger is satisfied. क्योंकि इतनी देर से उसको मालूम ही नहीं था वो कौन है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये सब क्वेश्चंस उसका आंसर हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है. जैसे हम जब खाना खाते हैं तो हमारा भूख मिट जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही. And then again, by Krishna consciousness, one is free from all material desires and all good qualities manifest in them. और ये हम यमुनाचार्य और अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. अम्बरीश महाराज was a king and he engaged all his senses in Krishna consciousness. तो वचन वो भगवान के वाणी बोलने में लगाते थे. तवै मनः कृष्णा पदारविन्दयोर्वाचं वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने. हरौ मतलब बहुत सुंदर है. दिस शुड बी मेमोराइज्ड. कराओ हरेर मंदिर मार्जिन मार्जिना दिशु, मतलब कर मतलब हाथ. हाथ जो है भगवान के मंदिर साफ करने में यूज करना है. कर्ण जो है भगवान के बारे में सुनने में, इस तरह से. सो सो दैट इज अम्बरीश महाराज. और तो उनके एग्जाम्पल से वी अंडरस्टैंड दैट the first question of the first question gets answered over here. तो यहाँ पे प्रभुपाद ने इसी चीज को लिखा है. Such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism. He remains happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. So this is what Krishna says. When a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind is thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. This is the answer of the first question. What is the symptom of a Sthita Pragya person? Now, 56. दुःखेष्वनुविग् दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. Dukheshu, in the threefold miseries, anudvigna manaha, without being agitated in mind, sukheshu, in happiness, vigata spriha, without being interested, vita, free from, raga, attachment, bhaya, fear, krodha, and anger, sitadhihi, whose mind is steady, munihi, a sage, uchyate is called. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. तो यहाँ पर Prabhupada explains the meaning of muni. The word muni means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to a factual conclusion. It is said that every Muni has a different angle of vision, and unless a Muni differs from other Munis, he cannot be called a Muni in the strict sense of the term. So, the meaning of the word Muni is one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to a factual conclusion. This is what a Muni is. In the Mahabharata, it is written, Nasav Rishir Yasya Matam Na Bhinnam.
बट स्थित मतलब एक मुनि हमेशा दूसरे मुनि से अपने जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं डिफरेंट एंगल ऑफ विजन की वजह से एक मुनि हमेशा दूसरे मुनि से अलग होता है। ये महाभारत में प्रभुपाद गिव्स द रेफरेंस ऑफ महाभारत, जहाँ पे लिखा हुआ है मतम न भिन्नम, भिन्न मतलब डिफरेंट, one muni is always different from the other muni from the point of view of the angle of vision that they have. But asthita dhir muni, as mentioned herein by the Lord, is different from an ordinary muni. The Sthita Dhir Muni is always in Krishna consciousness. कोई mental speculation उसका नहीं रहता है. For he has exhausted all his business of creative speculation. वो सब try करके देख चुके हैं. He is not interested in any more speculating from his mind because he has exhausted. मतलब वो जिसे कहते हैं घाट घाट का पानी पी लिया है. तो द पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बहु नाम जन्म नामंते. वो बहुत सारे जन्म में उसने ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, तो इसीलिए ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट. ही इज कॉल्ड प्रशांत निशेष मनोरथांतर, or one who has surpassed the stage of mental speculations and has come to the conclusion that Lord Sri Krishna or Vasudev is everything. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. This is the second part of that verse only. Bahunam Janmanamante Gyanvan Mam Prapadyante Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. तो बहुत नाम जन्म नामते, जन्म जन्म में वो उसने ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया है. अब उसको कन्विक्शन हो गया है कि वासुदेव सर्वम इति ऐसा महात्मा होता है, एक स्थित प्रज्ञ मुनि या फिर एक स्थित धीर मुनि या फिर एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी. ही इज कॉल्ड अ मुनि फिक्स्ड इन माइंड. Prashanta Nishesha Mano Rathantara. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries, for he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds, and he sees that his miseries by the grace of the Lord are minimized to the lowest. Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord, thinking himself unworthy of the happiness. He realizes that it is due only to the grace, Lord's grace, that he is in such a comfortable condition and able to render better service to the Lord. And for the service of the Lord, he is always daring and active and is not influenced by attachment or aversion. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of the Lord. Consequently, he is not at all angry even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination. So, because he has no attachment. अटैचमेंट तभी होता है जब हम अपनी इंद्र तृप्ति करते हैं, पर यहाँ पर जो भक्त होते हैं वो अटैचमेंट या डिटैचमेंट, he has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of the Lord. क्योंकि उसका अटैचमेंट नहीं है और डिटैचमेंट भी नहीं है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. डिटैचमेंट भी नहीं है, भक्त को तो डिटैच्ड होना चाहिए, नहीं डिटैचमेंट भी नहीं है. वो भगवान का सेवा में इतना बिजी है कि उसको अटैचमेंट भी नहीं है, डिटैचमेंट भी नहीं है किसी चीज से, क्योंकि डिटैचमेंट भी एक तरह का मायावादी होता है. नहीं नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं 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 थी करते हैं वो लोग. दैट इज मायावादी हो जाएगा. बट अ पर्सन हु इज अ डिवोटी, उसका कृष्णा के सर्विस, उसको अपना सर्विस से इतना डेडिकेशन रहता है कि ऑटोमेटिकली वो डिटैच्ड हो जाता है, एंड ऑब्वियसली उसको अटैचमेंट रहेगा नहीं. सो इसीलिए अगर वो कामयाब नहीं भी हो पाता है अपने सर्विसेज में भी, और इफ ही डजंट आई मीन अचीव व्हाट ही वांट्स, देन आल्सो ही डजंट गेट एंग्री, क्योंकि वो इसको भगवान का, ही थिंक्स दैट इट्स इज ऑल being done by Krishna. So, as Ayendra Prabhu says, if something happens good, then the devotee is Hari. He says Hari Bol, and if something doesn't good, I mean something not that good happens, then he says Hari Hari Bol.
So this is another symptom of uh, Sthita Dhir Muni. He is a sage of steady mind. So let's recap. So he is a sage of steady mind. He is always in Krishna consciousness. He has exhausted all business of creative speculation. Hmm. Then we saw who is a Muni, and then a devotee is equipoised because he accepts everything, which includes happiness and distress, as Krishna's mercy. He is free from attachment, fear, and anger. Fear हम तब होता है हमारा जब हम fear is actually related to the future tense. Future में हमको कुछ चाहिए और वो नहीं मिलेगा तो हम डर जाते हैं. और anger actually is related कि हमको कुछ चाहिए था और हमको मिला नहीं. So a devotee doesn't think like that. Why? Because he is always daring and active and fixed on the service of the Lord. He does not come under attachment or aversion. He never gets angry, whether successful or not, and he is steady in determination. तो हम्म, so यहाँ पे we can see, I think 2.58 में आएगा वो. So we go to the next words now. So 56 and 57, Krishna answers the second question. How does he speak? So last verse and this verse is the answer of the second question. How does he speak? 57. यः सर्वत्रानभीष्णे यः सर्वत्रानभीष्णे हस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः one who सर्वत्र everywhere anabhishneshah without affection tat that prapya achieving shubh good ashubh evil na never abhinandati praises na never dveshti envies tasya his pragnya perfect knowledge pratisthita fixed in the material world one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain neither praising it nor despising it is firmly fixed in perfect knowledge. There is always some upheaval in the material world which may be good or evil. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood in to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil because this world is full of duality. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil because he is simply concerned with Krishna, who is all good absolute. So यहाँ पे all good absolute का मतलब है कि duality नहीं होता है spiritual world में, क्योंकि वहां पर ही सब कुछ good है, वहां bad हो ही नहीं सकता. Spiritual world फिर हुआ नहीं ना वो. तो इसीलिए absolute duality का उल्टा absolute होता है. मतलब there is only one thing and that is Krishna, and everything related to Krishna will be good only. That is why in the spiritual world there is no effect of good and evil because everything is good. उसका opposite चीज है ही नहीं, तो फिर उसका effect हमको मिलेगा ही नहीं. So a person who is in Krishna consciousness doesn't get affected by the dualities because he is only concerned with the absolute, and that absolute is Krishna. So such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position, technically called samadhi. Hmm. So now we go to the 58th verse. यदा संहरते चायं कूर्मो
कूर्मो ज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियान्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा when samharate winds up cha also ayam he kurma tortoise angani limbs eva like sarvasha altogether indriyani senses indriya arthebhya from the sense objects tasya his pragnya consciousness pratishtita fixed. One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed in Krishna consciousness. So 58 58 to 63, Krishna answers his third question, which is how does he sit? How does a Krishna conscious person sits? तो यहाँ पर ही कृष्णा कंपेयर्स स्थित प्रज्ञ person with a tortoise. So what does and Prabhupada writes in the purport, the test of a yogi devotee or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do nots and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the don'ts, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of the Krishna conscious persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. This is mark this line. The senses of the Krishna conscious person are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. मतलब अगर उनको बोलना है तो कृष्ण के लिए ही बोलेंगे अदरवाइज नहीं बोलेंगे अगर उनको कुछ हाथ हाथ से कुछ काम करना है तो कृष्ण के लिए ही काम करेंगे अदरवाइज उनका हाथ नहीं चलेगा अगर उनको कहीं जाना है पैर का इस्तेमाल करेंगे तो मंदिर जाएंगे या फिर कोई प्रोग्राम है वहां जाएंगे या फिर यात्रा में जाएंगे नहीं तो वो घर में ही रहेंगे पैर का इस्तेमाल नहीं करेंगे विड्रॉ कर लेते हैं वो अपने आप को जब सेवा है तब उनका लिम्स उनका जैसे एक टॉर्टोइस का हाथ और पैर बाहर तभी आता है वैसे ही एक डिवोटी का भी तभी उसका सेंसेस बाहर आता है अदरवाइज वो अपने सारे सेंसेस को विड्रॉ कर लेते हैं वो नहीं जाएंगे अगर उनको अगर यात्रा नहीं है या फिर सेवा का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो घर में ही रहेंगे फालतू का घूमने घूमने का शौक नहीं चढ़ा रहता है उनको so that is a devotee. They will withdraw their senses like a tortoise. Arjun is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own satisfaction. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए सेंसेस को विड्रॉ कर लेते हैं जैसे मायावादी करते हैं नहीं 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 करना है नहीं करना है नहीं विड्रॉल नहीं हमेशा विड्रॉ नहीं रहता है जब जब सेवा है तो फिर इस्तेमाल करना होगा अपने सेंसेस को यहाँ पर भी अर्जुन को कृष्ण वही कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो तुमको अपने युद्ध तुमको युद्ध करना होगा तुम इस तरह से युद्ध भूमि को छोड़कर नहीं जा सकते यू हैव टू यूज योर सेंसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. So very important point. हम एक कछुए के एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं and if we keep this in mind that how a tortoise uh, withdraws his limbs एक tortoise कैसे यहाँ पे देखो वो टॉर्टोइस ने अपने लिम्स को अंदर कर लिया तो इस तरह से ही एक डिवोटी भी अपने लिम्स को अंदर कर लेते हैं और सिर्फ सेवा करने के समय में उनके सेंसेस बाहर आते हैं अदरवाइज no need of unnecessarily exhausting the senses
So withdrawing senses from sense objects. So Astitva Pragya, man in fixed intelligence, pure transcendental consciousness. So they withdraw senses because the senses are like venomous snake, should not be allowed to act loosely independently. तो सांप की तरह होते हैं सेंसेस. तो जब हम सेवा में हमारे सेंसेस नहीं लगेंगे तो बेटर है सेंसेस को विड्रॉ कर लेना. और objects of senses. So, a Sthita Pragya person withdraws his senses and he is able to control his senses by engaging in Krishna's service and by following the do's and don'ts of the revealed scriptures. So, this is very nicely understood by the example of the tortoise. So, then that is the 58th verse. So, Krishna will continue answering in the next verse. So let's read that. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. This is a memory shloka. Vishaya, objects for sense enjoyment, vinivartante, are practiced to be refrained from, niraharasya, by negative restrictions, dehina, for the embodied, rasavarjam, giving up the taste, rasaha, sense of enjoyment, api, although there is, asya, his, param, far superior things, drishtva, by experiencing, nivartate, he ceases from. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remain. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. So, one of you can read this. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Read. Hmm. Unless one is transcendentally situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, sense restrictions by some spiritual process like Ashtanga Yoga is the matter of yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, etc. is recommended for less intelligent person who have no better knowledge, but one who has tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. Sorry. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life, but such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. Hmm. Thank Thank you. So, this is very important to understand. Ki restrictions are for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life. Such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. So that's why we should follow the restriction. इसलिए पीछे भी कभी कभार पढ़ना पड़ता है. जो बिल्कुल नए नए भक्ति में आते हैं उनके पीछे लगना पड़ता है. सुबह उठना, उठा कि नहीं उठा, जबरदस्ती थोड़ा करना पड़ता है. इवन दो भक्ति में हम जबरदस्ती नहीं करते, बट if someone really wants to progress in spiritual life, then he has to follow the restrictions in the initial stages. और फिर इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में जब टेस्ट आ जाता है तो हम रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करते, नहीं.
इसका मतलब है उस वक्त क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्शंस फॉलो हो जाते हैं, हमको उसके लिए अलग से एंडेवर नहीं करना पड़ता है। द पर्सन हु इज एडवांस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो उसको हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम सुबह उठो, तुम चैंटिंग करो, तुम मंगला आरती करो, तुम रीडिंग करो, तुम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, तुम क्लासेस में आओ। उसको कुछ नहीं बोलना है, वो खुद ब खुद सब कुछ करेगा। बट द ओनली थिंग इज, जब तक वो टेस्ट नहीं आता है तब तक रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड देन प्रभुपाद गिव्स द एग्जांपल ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। अगर कोई बीमार है, अगर उसको डायबिटीज है, तो हम उसको स्वीट्स दे दे के जान से नहीं मार सकते, हमको उसको स्वीट्स नहीं देना होगा, उसको रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक the patient however neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables, तो उसको ये रेस्ट्रिक्शंस तो अच्छा नहीं लगते हैं और उसको तो मन करते रहता है स्वीट्स को खाने का, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। सिचुएशन और वर्स, ताकि एटलीस्ट और वर्स सिचुएशन ना हो। और धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ हिज एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे the person will lose the taste for dead material things. Prabhupada mentions dead material things. तो जब तक वो टेस्ट नहीं आता है तब तक restrictions को फॉलो करना बहुत जरूरी है। That is why this also you Prabhupada इसको एक बार उससे भी समझाते हैं कि एक बच्चा है अगर, तो if a parent has two children, so एक बच्चा जो बहुत बदमाश है, उसको क्या है कि उस आई मीन द उसको हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है बहुत। और उसको कोई चीज मतलब होता है ना, उसको बैठा शांत करने के लिए उसको कोई चीज देके हम लोग को इस तरह से बिठाना पड़ता है। बट अ पर्सन हु इज थोड़ा एडवांस्ड, अगर अगर उसको पेरेंट्स से ज्यादा प्रेम है, तो देन द पेरेंट टेल्स हिम टू डू सम सर्विस। उसको बोलेंगे पानी का ग्लास लेकर आने, उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका खुद का माइंड अभी कंट्रोल में नहीं है। So in the initial stages, we have to follow the restrictions as well as engage our senses more and more in service. उस तरह से हमको ट्रेन करना चाहिए। इवन प्रभुपाद एक बार जब मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे, तो देयर वाज अ डिवोटी स्टैंडिंग नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, तो ही वाज जस्ट स्टैंडिंग। प्रभुपाद बोले कि व्हाई आर यू स्टैंडिंग? वहां पर पानी गिरा हुआ था सीढ़ी में, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप इसको क्यों नहीं साफ कर देते, आप ऐसे खड़े हो। सो इन द सेम वे, इन द इनिशियल स्टेजेस वी शुड फॉलो द रेस्ट्रिक्शंस। थोड़ा हमको लग सकता है कि हमारे काउंसलर्स हमारा पीछे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए हैं, है ना। जस्ट लाइक अभी आप लोगों को बोलना पड़ता है जबरदस्ती, मॉर्निंग सुबह उठो, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो। अभी कर रहे हैं आप लोग, फिर कुछ वीक्स बाद में मुझे पता चलेगा अगेन नहीं आ रहे हो, फिर मुझे देखना पड़ता है, फिर से बोलना पड़ता है। ऐसे क्यों? क्योंकि यू ऑल हैव नॉट गॉट द टेस्ट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिसको टेस्ट मतलब ऑब्वियसली उतना इजी नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप हताश हो जाओ और छोड़ दो कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं, ये करते 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 जबरदस्ती मुझे पीछे लगते रहना पड़ेगा, फिर एक ना एक दिन ऑटोमेटिकली ये पेल थिंग्स के लिए आप लोगों का टेस्ट चला जाएगा। मतलब जो भी पेल थिंग्स मतलब मटेरियल, प्रभुपाद उसको डेड बोल रहे हैं, डेड मटेरियल थिंग्स के लिए आप लोगों का टेस्ट फिर चला जाएगा। फिर मुझे पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा कि आप लोग मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ। इस तरह से मुझे पीछे नहीं लगना पड़ेगा, अदरवाइज अभी पीछे पड़ना पड़ता है। वीक में एक दिन क्लासेस होते हैं, संडे एटलीस्ट ऑफलाइन आना चाहिए। नाउ यू ऑल आर कमिंग, पहले नहीं आते थे आप लोग। तो धीरे धीरे यू ऑल कैन सी, अभी आप लोग खुद ही देख सकते हो कि आप लोगों का मन करता है क्लास में आने का, आप खुद आते हो। अभी ऑफलाइन क्लासेस, एवरी ऑफलाइन क्लास मोर देन 10 ऑफ यू कम्स। एवरी ऑफलाइन क्लास में 10 से ज्यादा अटेंडेंस होता है आप लोगों का। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों को खुद अच्छा नहीं लगता है,
एक दिन तो हम जाएंगे टेम्पल, है ना? यू विल मेक इट अ पॉइंट दैट वन डे एटलीस्ट यू कम टू द टेम्पल। टेम्पल आते हो, दर्शन करते हो, क्लासेस करते हो, प्रसाद लेते हो। पहले नहीं होता था ना, पहले मुझे पीछे पढ़ना पड़ता था ज्यादा। तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज राइटिंग ओवर हियर। पीछे पढ़ना पड़ता है बिकॉज अब इनिशियल स्टेजेस में हम हमारे अंदर वो मटेरियल चीजों के प्रति टेस्ट गया नहीं है। बट नाउअडेज आई कैन सी मेनी ऑफ यू, आई डोंट हैव टू से, आप लोग खुद आते हो, खुद करते हो। इनफैक्ट इफ क्लास, जैसे अगर मैं क्लास नहीं, अगर जल्दी चले जाती हूँ तो आप लोग खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। यू ऑल विल डू थिंग्स ऑन, खुद से अभी आप लोग करते हो बिकॉज यू ऑल आर गेटिंग द टेस्ट, थोड़ा थोड़ा टेस्ट मिल रहा है। वाई? धीरे अपने आप, अगर किसी हायर टेस्ट हमको मिल जाता है, जैसे द माइंड इज लाइक अ मंकी, तो हम मंकीज को हम देखते हैं ना, वृंदावन में ये एक्सपीरियंस हमने किया होगा। चश्मा लेके बंदर चला जाता है, तो क्या कैसे उससे चश्मा लिया जाएगा? वो देगा नहीं देगा, तो चश्मा को तोड़ ताड़ के फेंक देगा। बट उसको एक हाथ में फ्रूटी देते हैं तो वो दूसरे वो चश्मा को फेंक देता है ना। तो वैसे ही हमको भी बेटर कोई अच्छा चीज मिल जाएगा, और बेस्ट चीज तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है। तो ऑटोमेटिकली हम ये मटेरियल चीजों के प्रति जो हमारा टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। सो दिस विल हैपन ग्रेजुअली। ये डेवलप, ये आते रहने से क्लासेस में और डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते रहने से ये चीज धीरे 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 डेवलप करना पड़ेगा हम लोगों को। दिस विल नॉट हैपन एक बार में, दिस विल हैपन ग्रेजुअली। ठीक है? सो वी स्टॉप हियर। सो 2.60 से हम कल करेंगे। सो इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन यू ऑल कैन आस्क मी। अदरवाइज इफ यू हैव अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन संडे, जब हमारा ऑफलाइन क्लास होता है दैट टाइम यू कैन आस्क मी। या फिर हम पहले एवरी मंथ Q&A सेशंस रखते थे, तो यू ऑल कैन राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड देन वी कैन, उसको हम Q&A सेशन में आई कैन आंसर। बट टुडे आई वांट क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या फिर कोई पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा लगा, you can share that. Let's keep the conversation and the questions and the realizations related to the topic of the class that we have discussed. That is better. And then outside class questions हम लोग या तो संडे को करेंगे, आई मीन आई विल आंसर ऑन संडे। अदरवाइज एवरी मंथ जो Q&A सेशंस रखते थे वो कर सकते हैं। So any questions related to the class today or any realizations today? No questions? Any point you all like? Otherwise, I will have to ask questions. हाँ, yes, Kajal. हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम माता जी। इन वर्स नंबर 58 कृष्णा सेड कि वी शुड हैव टू बी कंट्रोल ऑन आवर सेंसेस। तो क्या जनरली डिवोटी को कंट्रोल करना है, तो जस्ट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस सेंसेस पे कंट्रोल हो सकता है? हाँ, क्योंकि सेंस को दूसरा एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है ना। जो सेंसेस से हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, जैसे मान लो टंग ले लो, सेंस एक सेंस हो गया हमारा, है ना, हमारा जीवा। हम उससे हमको जो पसंद है हम वो खरीद के खाए, तो वो हुआ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और खाते जा रहे हैं मतलब अनकंट्रोल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंसेस में कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अभी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज मतलब हम सिर्फ प्रसाद लेंगे,
अगर प्रसाद नहीं है तो नहीं लेंगे। तो क्या हुआ? सेंस ग्रेटिफिकेशन अपने आप कंट्रोल हो गया ना, है ना? जी। जैसे कान सुनने का ही ले लो। अभी हम बिफोर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस हम आलतू फालतू बॉलीवुड सॉन्ग सुनते थे। कितने लोगों का, हम लोगों का वो खत्म हो गया है, बॉलीवुड सॉन्ग सुनना बंद हो गया। हमने अलग से उसको बंद नहीं किया, वो अपने आप बंद हो गया, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा कान अभी कीर्तन सुनने में टाइम, मतलब हमारा कान को अभी कीर्तन चाहिए, हायर टेस्ट मिल गया ना, बेटर चीज मिल गया। तो अपने आप वो बॉलीवुड सॉन्ग्स हमारा प्लेलिस्ट से हट गया। पहले प्लेलिस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग्स रहते थे, हमारा फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग्स रहेगा। पर अभी प्लेलिस्ट में क्या है? अभी प्लेलिस्ट में हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, कीर्तन है, ओनली कीर्तन इज देयर। या फिर कम तो हो गया होगा फॉर श्योर, अगर पूरा अगर हटा भी नहीं है तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। हमारा सेंस ग्रेटिफिक सेंस कंट्रोल हो गया, मतलब कान जो है वो अभी कंट्रोल हो गया। इन द सेम वे आईज को भी ले सकते हो, हमारी आंखें। अब आंखों से हमने अभी न जाने क्या क्या देखा है। अभी वी ओनली वांट टू हैव दर्शन ऑफ द लॉर्ड, या फिर हम भक्तों का दर्शन करना चाहेंगे। अपने आप ये आंखों का भी कंट्रोल हो गया। ऐसे कर करके ना हमारे सारे सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि हम सेंसेस को भगवान की कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में बिजी कर देते हैं। टाइम ही नहीं है हमारे पास बॉलीवुड सॉन्ग सुनने का, टाइम ही नहीं है आंखों से बॉलीवुड मूवीज देखने का, टाइम ही नहीं है पैरों से चलकर कहीं ऐसे ही घूमने घूमने जाने का। नो, वी डोंट हैव टाइम, बिकॉज वी हैव ऑक्यूपाइड। हम अपने टाइम को बिजी रखते हैं भगवान के लिए, भगवान के सर्विसेज के लिए। और अगर हम भगवान का सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं, देन वी फील कि नहीं, क्या है, नहीं हो, नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, मन में आता रहता है, वो मन में आता रहता है। दैट टाइम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, हमारा मन किधर है वो ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं एक लेक्चर में अभी रिसेंटली मैंने सुना कि दो फ्रेंड्स थे। तो एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला कि तुम चलो मेरे साथ, हम लोग जाएंगे, पार्टी करेंगे, वी विल ड्रिंक एंड ऑल, क्या तुम पूजा करते हैं, ये सब क्या करते हैं? तो वो बोला कि नहीं नहीं तुम जाओ। और वो यहाँ पर ही दोनों, अब वो अपना गया फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक विंक कर रहे हैं, और ये यहाँ ये पूजा कर रहे हैं, और दोनों का मृत्यु हो गया। और मृत्यु के समय ये जो पूजा कर रहा था, ये मन में क्या सोच रहा था कि मैं पूजा कर रहा हूँ, लेकिन उसका तो, मेरा तो फ्रेंड बहुत मजे कर रहा है। मतलब वो पूजा कर रहा है, लेकिन उसका माइंड में देखो वो क्या सोच रहा है, वो तो बहुत मजे कर रहा है, वो ड्रिंक विंक कर रहा है, मैं तो यहाँ पूजा कर रहा हूँ। और वहां पर वो जो फ्रेंड था, वो सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर ही ड्रिंक कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड तो पूजा कर रहा है भगवान के लिए, भगवान की भक्ति, वो भगवान के बारे में वहां सोच रहा है, और ये इसके बारे में। तो जब दोनों का मृत्यु हुआ तो उल्टा हो गया, वो भगवान के वो भगवान के यहाँ गया और ये नहीं जा पाया। तो सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सबसे बड़ा चीज है, हमको अपने मन को, हमारा मन भी नियंत्रित हो जाता है अगर हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारा मन भी नियंत्रित हो जाता है। सो सो दैट इज द थिंग, एंगेज कर दोगे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। क्लियर? यस माता। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है? अगर आउटसाइड द क्लास कुछ क्वेश्चन है, प्लीज राइट इट डाउन, और वो हम, वी विल डिसाइड कि हम एक Q&A सेशन रखेंगे, या संडे को y'all can ask me. Write the question somewhere. तो अभी हम क्लास एंड करते हैं, since we have no more questions. Thank you very much for coming to the class. We'll say the Vaishnav Pranam mantra. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।